That time I started in second year with pandemic. So I used to visit many ashrams, many healthy orphanage, and I used to visit many street vendors to know like what are the problems they are facing. They think everyone think like startup किया मतलब उसको सब खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए, but they didn't know that startup founders work 24/7. Exactly. अभी क्या है लोगों को क्या लगता है स्टार्टअप में अंधा पैसा है. Exactly. फेम मिलती है, ग्लैमरस है, मतलब there is a huge lot of money, like overnight money we can generate. जरूरी नहीं कि IIT ही चाहिए. फाउंडर है, उनके फ्रेंड के मम्मी का उनको कॉल आता है कि दिस इज उनका एक्सीडेंट हो गया है एंड दिस इज लाइक Myself Dhananjay Rashinkar. Okay. I am from Video Variety College, completed BTech in computer. चैनल स्टोरी में धनंजय सर का स्वागत है. कैसे आप सर? I am good. How are you? आई एम टू फाइन सर. सो अभी मुझे ये बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ इट ऑल बिगन? यू हैव 3+ स्टार्टअप एट द एज ऑफ 22. बहुत कम लोग ये कर पाते हैं. मीन्स अराउंड 90% लोग कॉलेजेस में, कुछ 1% होंगे जो कि ये सब करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉलेजेस. वो मिस जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? मेरे को जानना. So basically my aim was to do career in medical firstly when I was in 11 12, but happened is like my score in the NEET was less, but I have cleared JEE Mains and Advanced. Okay. So unfortunately I came into this technical world, took admission in Video Variety. So when I was in Video Variety, like that time I started in second year with pandemic. So I used to visit many ashrams, many healthy orphanage, and I used to visit many street vendors Okay. to know like what are the problems they are facing. Like I couldn't help them in medical terms, so I thought we could do something in technical field to help them. So basically what whenever I used to visit ashrams now, they used to say like our children make different types of toys, different types of articles, drawings, paintings, etc. And we organize some exhibitions and then people come, they buy the products and they earn. Okay. So I was like, in pandemic everything was closed, totally sealed. No, there was no any chance for exhibitions. So what I thought is like creating a platform for them. A Okay. website. Online shopping was at peak that time in pandemics. E-commerce. Yeah. So basically I developed a website in second year Okay. named Shining Humans. Shining Humans. Yes. So it's basically an e-commerce website where the people, these handicapped peoples or the women's like Mahila Bachat Gat, Okay. they make different types of food materials, raw foods like mango, pickles, achar, everything. So they all upload their products on our website, Okay. and different Marathi actors do its promotion as it's a social work. They promote it for free. So in that way we gather the crowd. They also get the customers and it's easy for them sitting at home getting the customers and. Okay. It's like similar to Amazon. Right, it's similar. Just the thing is, we don't take any commission. Whatever the amount, it goes to your account directly. We are just a mediator, like connecting customers to them. Okay, That's but it. there will be no need of money now to the developers to pay the developers who are running the website and all of this Actually, stuff. I am the developer. I have made the whole server. I have developed every UI design. Everything is made by me. So the costing was literally zero for that. Okay, so आप ही सब manage करते Yes, हैं everything is managed by me. I also have some teams like for marketing. Okay. Different like starting with what we have to give the demo, how to upload, how to register. So I have a certain amount of students working under me. So on different areas, like if suppose in Aund area, so whoever the person working in Aund, he will handle that area. Whoever want to register, how to upload, everything will be managed by that person. And even some students do internship under me, like for 3 months, 6 months, very marketing development. So आप internships को pay तो करते नहीं हैं. No. So आप उनको agree कैसे करवाते हैं कि work with me? Because if you not paying. I don't approach them. Those who are interested, they personally message me or call me that we want to work under you. We like the work you are doing. Like we want to contribute to the society. So we want to join with you. That's the reason. There are almost 50+ students working under Shining Humans team. Just to give you social But work. They are doing jobs in Bangalore, Hyderabad, but still working under. Like a part time. Part time, like just social work.
like their main motive is that we have done something in technical field. Okay. So we can't pay, like many students don't pay money. There are some donate the amount. But they're like, we'll invest our time to improve their background. अच्छा. For the poor people, handicapped people, everyone. हम्म. That's the main motive of Shining Humans. मैं स्टार्टअप कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ बिकॉज स्टार्टअप कल्चर इज वन ऑफ द मींस दे थिंक एवरीवन थिंक लाइक स्टार्टअप किया मतलब उसको सब खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए बट दे डिडंट नो दैट स्टार्टअप फाउंडर्स वर्क 24/7 एग्जैक्टली भी क्या है, लोगों को क्या लगता है स्टार्टअप में अंधा पैसा है. एग्जैक्टली. फेम मिलती है, ग्लैमरस है, मतलब there is a huge lot of money, like overnight money we can generate, but that's not the real thing. We have to like everything, marketing, development, back end, technical knowledge हो, marketing का हो, जो भी हो, सब कुछ देखना पड़ता है. And ऐसा कुछ ऑफिस टाइम नहीं है. 24 as you said 24/7, literally 24/7 वर्क करना पड़ता है. And the main important thing is we should have patience. ऐसा है कि आज मैंने स्टार्टअप चालू किया, अगले मंथ में मुझे मंथली 1 लाख का इनकम देने लगा एंड लाइफ इज सेट. डेफिनेटली ऐसा है. अगर 1 लाख आते हैं तो वी हैव टू इन्वेस्ट मोर 2-3 लाख सो दैट we can generate more revenue. What we say, the foundation build करने में जो भी लगता है, तो it takes time. So patience is very important. बहुत जरूरी है. Okay, in startups. So this is for the founders who are starting now. So let me know about the things like you are in college. Okay. So college support करता है ये सब जितने भी startups करते हैं आप जो भी college में थे at that time. Let me know the college name as well. Vishwakarma Institute of Information Technology. Okay, VIT. Yes. Okay. So my first funding, what I got for Shining Humans was from my college. Oh, fantastic. Yeah. So college also supports. College supports a lot in this. Also the second startup Southing. So उसका जो भी पेटेंट का प्रोसेस है, उसके लिए भी पूरा कॉलेज ने हेल्प किया मुझे. The funding amount, the पूरा पेटेंट लाके ही दिया, मतलब डायरेक्ट. The college is very supportive in this case because they feel proud, like whoever takes admission in engineering, everyone like their parents हो, उनके दोस्त हो, उनके seniors हो, they are like placement अच्छी लेंगे ना 4th year. That's it. और से ज़्यादा लोग सोचते हैं. हाँ. They are like diverted their mind, the placement लेना. That's it. Whether it's 2 lakhs, 3 lakhs, no matter, but take the placement. And मुझे ये सब चेंज करना था thinking कि placement नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट अपने खुद का कुछ चालू करो वो इस्तेमाल करके. Like what company does, it uses your knowledge, you make them app designs. Yep. They earn in CRs and give some percent to you. Agreed. Instead of why don't you yourself enter the market? Okay, you are If you right. have the knowledge. आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो वो क्यों आप दूसरे को जॉब दीजिए ना. हाँ, खुद चालू कर दो, जॉब दो ना दो, but you have that skills, use that skills. Why to be slave? आपके पास इतना सब कुछ टैलेंट, आपके टैलेंट बेस पे प्लेसमेंट मिलता है. So why to waste that? Use in something. So college supported me a lot in this. College is very supportive. What do you think about the culture like college dropout or something? Because many founders, like you know, many examples. There are many examples. There are like see, they are very rare. Like out of 100 students in dropout, 5 to 10 can be successful. Like it's some part on luck. Also. The ratio is ratio is different. But in college now, what we learn is not only in the education purpose, but like how to face the failure, basic thing, how to adjust, and the pressure, whatever the society gives. Then multitasking, like college भी करो, फेस्ट करो, दोस्तों के साथ घूमना, enjoyment, सब कुछ एक साथ. तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा. वो जो एक्सपीरियंस आएगा वो कॉलेज के थ्रू अच्छे से आएगा. मतलब दैट विल बी द लाइक फाउंडेशन बेस फॉर योर नेक्स्ट, लाइक स्टार्टअप में ही नहीं, बेसिक लाइफ में भी अगर आपको कुछ सीखना है ना तो उसका कुछ तो कनेक्शन कॉलेज लाइफ से होता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो. सो दैट पार्ट यू कांट स्किप, लाइक वो चाहिए ही चाहिए लाइफ में. कुछ लोग करते हैं सो दे आर एट डिफरेंट लेवल, लाइक बट ये चाहिए. So आपका प्रेफरेंस है कि कॉलेज ड्रॉपआउट ना हो, जो भी कुछ कर रहे हो कॉलेज के साथ एटलीस्ट मिल के करो. हाँ, कॉलेज के साथ करो, दोस्तों के साथ करो, ताकि सबका माइंडसेट अलग होता है. और ये लाइक इफ आई एम कॉलेज ड्रॉपआउट, पीपल वुड एंटरटेन मी. If I went like मेरे पास एक आइडिया है, we would work on that. People will not entertain and seriously ना लेंगे. Until they see the results of those startups. And they are like, he's not from our background, like Yeah. इतना comfortable नहीं feel करेंगे. लेकिन if you work in them
although you have zero knowledge in academics, zero attendance, but वो जो ग्रुप होता है वो अलग लेवल का होता है, so उसके वजह से बहुत हेल्प होती है. Like, Okay, so VIT, I think it's a pretty much good college. it's very good college. Yeah. To be honest. Okay, so आपको सपोर्ट किया डेफिनेटली से, बट सब लोग कहते हैं कि IIT इसको ज़्यादा प्रेफरेंस करता है. See, हाँ. Frankly speaking. Actually, this thing had happened with me. Oh. They were like, you have cleared JEE advanced. My advanced rank was 3000. Oh, fantastic. So they were like, why don't you go to IIT? Of course. So I was like, see, what I have to do. It's my talent. Whether it's IIT, VIT, MIT, any college. It doesn't matter. It doesn't matter. Things are totally on me. Like what I adapt, what I implement, how I plan, how I think. So what? वो भी वही knowledge देने वाला है, CC, मतलब basic engineering knowledge. So I will implement. But the that. environment will be the different. Na? So you are getting any No, IITs? I have few interns from IIT working under me. Oh, yeah. From NIT, from NIT also and IIT also. So it was like a huge achievement when I received a call. Like once I can say Naman, he's from NIT Surat. Okay. So he was like, I want to work under you. हमारे कॉलेज में ऐसा बैकग्राउंड है नहीं. No one is working on startups. Everyone is like job चाहिए. Everyone is focused. Extra curricular वगैरह वो करते हैं, लेकिन everything is managed by the college. Students are just like going and enjoying studying once. So are you telling this about the NIT? Yeah. So he is working under me, and he is very happy. Like he is like, अच्छा कि that I found you and I'm working under you. डिफरेंट बहुत कुछ सीखने मिलता है. IIT NITs में क्या होता है, उससे कुछ नॉर्मल कॉलेज है, उसमें सब कुछ स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं, लाइक एवरीथिंग एकदम इन डिटेल, लाइक वेदर इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स, एवरीथिंग. बट इन IIT लेवल ना उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि लाइक पढ़ाई का माहौल सिर्फ ओनली स्टडी, प्लेसमेंट एंड गुड प्लेसमेंट, बस इतना है. तो दे वर लाइक हमें ऐसा बैकग्राउंड चाहिए था. तो वो वर्क ऑनलाइन ही वर्क कर रहे थे, लेकिन दे एंजॉयड, लाइक इट वाज गुड. सो ऐसा जरूरी नहीं कि IIT ही चाहिए. इट्स टोटली ऑन यू. लाइक एक कहावत है हिंदी में, यू कैन से हीरा अगर चमक जाए तो हीरा कहीं से भी, कोयले की खान से भी चमकता है. तो इट्स लाइक इट्स टोटली ऑन यू. Depend on your talent and knowledge. How you adapt in the environment and how you implement your ideas. If implementation and adaptation is good, you can survive anywhere in the world, anywhere. Fantastic. So That's the- IITs, NITs, yeah, वो मुझे They are good in educational purpose, of course. Of course. It's too good in education purpose, and placement is definitely good. But the way we see ना कि like जो extra knowledge चाहिए सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है, एडेप्टेशन कैसे करना है, It's real life knowledge. वो तो रियल लाइफ में ही मिल सकता है, चाहे वो NIT हो या कोई और. Even I want to share you one fact about the IIT Bombay. In this, I think 2024, 35% students are without a placement in this year. Right. That's the fact. This is the ratio of the IIT Bombay right now. Right. So that's what I'm saying. It's totally up to you. Whether it's NIT, IT, and also like it's a job. One or the other day they will end up. You have to change the job and all. But if you start the business, so you will automatically get the funding. You will. It will day by day. You will see success. You won't see any decrement in that. Job का like they continue 24/7. They have the tension. अभी ये रिसेशन चालू था, बहुत लोगों को जॉब से निकाला. They wouldn't have thought कि like कल ज्वाइन किया है 2 महीने में निकाल दिया, नोटिस पीरियड आ गया. सो वो भी चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, टेंशन सबको रहता है अलग अलग वेज में. बिजनेस है तो भाई इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट जो भी है सर्विस, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस, उसका सेल कैसे होगा, वो टेंशन. और जॉब वाले तो वही जॉब से निकलना दे, प्रमोशन होगा कि नहीं, सैलरी कितनी आई हाथ में. सो सबको होता है, बस इट्स देयर चॉइस वेदर यू हैव टू डू जॉब और स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो आपका माइंडसेट, मुझे ये तो अभी तक जितना बातें किया और ये समझ में आया कि यू आर लाइक मुझे जॉब तो नहीं करना है, मुझे कुछ अपना खुद का कुछ करना है कि मैं जॉब वो देखूं. Yes, okay. The main even my parents think यार जॉब कर रहे हैं, 15 लाख का पैकेज मिल रहा है बच्चों को, 20 लाख का मिल रहा है, अभी 2 साल हो गए 40 लाख तो हो गए. इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस जो भी स्टार्ट करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है. कोई भी बेसिक गूगल कंपनी भी लो, जो स्टार्टेड इन स्मॉल वेयरहाउस, नाउ इट हैव रीच्ड, टाइम पीरियड लगता है. लेकिन जब वो पॉइंट आता है ना, एम्पायर, हाँ
तो they are like you have made a big glass. So टाइम लगता है हर एक चीज को. So जैसे मैंने बोला पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो. पेशेंस बहुत और सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन. Can you elaborate on this? डिसिप्लिन इज लाइक बिजनेस का ऐसा होता है देयर इज नो एनी लाइक आज छुट्टी लेने मेरे को ले लिया छुट्टी, मैं 5 बजे के बाद काम ही नहीं करना है. तो ये सब नहीं. बिजनेस मतलब रात को 12 बजे भी कॉल आया ना, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेरी एट दैट मोमेंट. Job is like 9 to 5, 5 after 5 p.m. I am free. I will work that to कल 9 बजे आऊँगा मैं. रात में कुछ 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं. They have the boundaries. Business owner के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, ना कोई वेकेशन ना कोई छुट्टी. It's totally on them. If you have to work, अगर बिजनेस कर रहे हो और वो बोला नहीं आज मेरे को आज जॉब ही नहीं, आज उठना ही नहीं मुझे, क्योंकि अब पार्टी करनी है, तो वो सब नहीं चलेगा. If you have to do that work. And after that work, if you have time, you can enjoy. Actually, there are many, we can say entrepreneurs or startup founders. They were like start इसलिए कर रहे हैं because they want to generating a revenue. सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो. Right. और कल स्टार्ट किए आज मुझे there are 2 categories business start करने में. First is मुझे बहुत पैसा कमाना है. बस. And second is मुझे step by step knowledge भी कमाना है, लोगों को देना भी है और इनकम भी करना है. Both are two different. पैसा कमाना दे लाइक प्रोडक्ट्स बनाओ बेचो पैसे ले लो. This is the misconception of the startup founders. हाँ, that's what I said ना. लोगों को लगता है फेम मिलता है, ग्लैमर मिलता है, ओवरनाइट मनी कमाना है. That's it. वो इट्स लाइक ऐसा कभी नहीं होता ओवरनाइट मनी वगैरह. स्टेप बाय स्टेप करो सब मिल जाएगा, नो इश्यूज, बट टाइम लगेगा. Okay, means our main focus is patience is the main key of business. Okay, let me come to the college life and ask you. क्लासरूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लासरूम अटेंडेंस मैंने so basically I was a backbencher. ये सभी एक्चुअली इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस इंटरव्यूज दिए हो जिसमें सैगनी घोष जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं YouTube पे जाके. He is also the alumni of MIT and he has built the foundation of WorkEd. Okay. The same perspective जो आपके पास है, मींस कॉलेज के बाद मुझे जॉब देना है, जॉब नहीं करना है. He is also the miss उनका अटेंडेंस बहुत कम था. मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ. See basically I was backbencher. मेरा अटेंडेंस कम नहीं था because I used to enjoy that company. Like दोस्तों के साथ रोज रहना. मैं कॉलेज को रोज 20 किलोमीटर जाता था घर से डेली बस से. स्टार्टिंग में लाइसेंस नहीं था. Okay. First year I went from Aun to Kundwa via bus, PMT bus. Okay. So मुझे वो कॉलेज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता था. दोस्तों के साथ रहना, वो टाइम स्पेंड करना. एक्चुअली 10th तक टिल 12th आई वाज एन प्रॉपर इंट्रोवर्ट. मैं किसी से बात आई डोंट हैव स्कूल फ्रेंड्स एनीथिंग. आई जस्ट गो टू स्कूल, अटेंड स्कूल, बस. हाँ, बट आफ्टर 12th आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इन द सेंस आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स. उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना. तो वो जो मेरे फ्रेंड सर्कल बना है तो दैट इज एट डिफरेंट लेवल. लाइक आज सब जॉब पे है. कोई एनवीडिया में, कोई गूगल में, समारीनी, इन्फिनिटी, 2 गुड प्लेसमेंट्स. लेकिन बहुत अच्छा लाइक सपोर्टिव बहुत है और बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो इंजीनियरिंग बेसिकली डिग्री कॉलेज में 12th तक दे आर लाइक आपको करियर पाथ चूज करना है तो फोकस रहना पड़ता है. चाहे फिर वो नीट हो, जेडब्ल्यू हो, फिर 12th के बोर्ड्स हो. बट असली लाइफ जो शुरू होती है सीखने, सिखाने, एंजॉयमेंट की, वो होती है डिग्री कॉलेज में. सो दैट्स सो मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया. हाँ, मैंने लेक्चर अटेंड किया लेकिन मेंटली वी आर इन समवेयर एल्स. फिजिकली वी आर प्रेजेंट इन क्लास बट मेंटली वी आर लाइक आज कहाँ घूमने जाना है. दैट टाइप ऑफ पीपल. आवर फ्रेंड सर्कल इज व्हाट डिफरेंट लेवल. बट व्हेन वी केम लाइक एट द पॉइंट दैट नहीं अभी कुछ स्टार्ट करना है अच्छे से. So even our teachers were shocked. College life is you must attend college even though you don't want to gain the knowledge. Class नहीं करनी है but better वो time फिर से नहीं आएगा. Like I miss that time. Lectures attend करना, college में घूमना वगैरह सब. Actually minimum founders believe that if अगर वो हमारी एज की है तो college is supportive. The minimum answer is 99% college is supportive. College is supportive. Of course, even my college is too supportive. Yeah. College is supportive and college like they give preference to such kind of students who want to start themselves. Like placement करनी है तो ठीक है, they have placement cells and all. They have everything. But if you want to start something, they will organize different programs, extracurricular activities.
every college have a cell entrepreneurship development cell. Definitely. That helps a lot. So actually, I had zero knowledge about startup, but when in first year I had joined EDC, my college cell. Okay. So after joining, I had attended the Vishwapreneur, like उनका एक Vishwapreneur होता है. Okay. So they were like technical guruji and different अच्छा, types वो mostly event sales, हाँ speakers. event speakers आते हैं. तब मुझे पता चला स्टार्टअप क्या होता है, कैसे करना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए, फंड्स कैसे लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फेलियर्स क्या क्या आते हैं, कैसे, तो वो सब मुझे वहाँ से कॉलेज से सीखने मिला, वो सेल्स की वजह से. Okay. एक्स्ट्रा कॉलेज के साथ साथ एकेडमिक्स ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा सीखने मिलता है. Exactly. So does 10th and 12th marks matters? No. My 10th marks was like 80% only, and my 12th was around 64%. But still, I have cracked mains, advanced, and now NIT students are working under me, so it doesn't matter. As I said, failure here, it's totally only how you adapt that failure and how you learn and how you improve yourself. Okay, how do you learn from those failures and implement and implement in stuff? future stuff. See, failure stepping stone वो सबको पता है, failure is stepping stone to success, तो actually real है. उस 12 को 64 मिला, no issues. मैंने next month में JEE mains clear किया and within 9 days I have cleared advanced. मुझे coaching class नहीं था, self study. This is the big point and I want to make elaborate on this. Like कोचिंग क्लासेस में लोग स्कूल से ज्यादा कॉलेजेस से ज्यादा खर्च करते हैं कोचिंग क्लासेस में. right. They are like 3 lakhs. There are many institutes. I will not take their name. They like take attendance, college just for attendance purpose and full time class. Yeah, it's like a type college ले लो. हाँ, इधर से right. जो main institute है, there are many institutes like Right. NN as well, and there are many FITCI. I'd like to share like जब मैं 12th में था, हमारे क्लास में ऐसे 2-4 लड़के थे जिन्होंने टाइप लिया था. ठीक है. वो आते नहीं थे कॉलेज, बस एग्जाम के टाइम आते थे. एंड यू लाइक डेली कॉलेज जाओ, एंजॉय करो बस. सो रिजल्ट का टाइम आया था एंड आई पोस्टेड माय रिजल्ट लाइक इन मेंस आई हैव गॉट 128 मार्क्स in JEE mains. Great. So I posted it, and the one of the person who was in a good coaching class, like type जिसने लिया था, he's like, how is that possible? How is that possible? वो बोला मुझे इतना सब करके 50 मार्क्स ही मिले. I was like, bro, मुझे केमिस्ट्री में 60 मार्क्स है. So he's like, नहीं मैंने तो टाइप लिया था, इतना सब किया, तूने तो सेल्फ स्टडी, ये मार्क्स हो ही नहीं सकते, पॉसिबल है. ही गेव मी द चैलेंज दैट अगर ये मार्क्स तेरे मन के है तो एडवांस क्लियर करके दिखा. You take it first. हाँ, he was like, तूने तुक्का लगाया for sure, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. ये अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ. निकल जाता है, ये तो तुक्के से निकाला. हाँ, ये तुक्के से निकला. Accepted challenge. Literally, I had plans like घूमने जाना था बैंगलोर फैमिली के साथ. After JEE mains result, I was like, अबे एडमिशन मिल जाएगा, 128 मार्क्स आर टू गुड, NIT तो आराम से मिल जाएगा, लेट्स गो. फिर ये जब हुआ ना, I literally cancelled my ticket. पेरेंट्स गए, 9 days मैं कंटिन्यू स्टडी किया, एडवांस था, एंड विद इन 9 days I went to exam, appeared, and I scored 112 marks. And the cutoff was around 94, 95 something, and I had scored 112. So I had completed. ये जो लाइफ में झटका मिलता है ना, वो बहुत मायने रखता है. और तब मैंने सबको दिखा दिया कि देखो 10th and 12th marks aren't important. आप अभी क्या कर रहे हो, बस लोग उस पर फोकस करते हैं. पास को यार फैमिली नो माय मार्क्स, मी नो, लोग भूल जाते हैं. आज पूछते हैं, पार्टी मांगते हैं, कल भूल जाते हैं. आज आप क्या करते हो टोटली इस पे डिपेंड है, टोटली. Current मार्क्स डजंट मैटर, लाइक 10, 12 व्हाटएवर यू स्कोर, फोकस आपको आगे कर, कुछ अच्छा करना है बस. ईगो पे लो कुछ चीजें, सो दैट वो ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है वो. Okay, so let's delve into your startup journey. Let me know about what are the startups are you currently working on. Okay. So currently I'm working on you can say 4 startups. The first one is Shining Wings, as I said, the website e-commerce. Second is Sauli app. Now what that app does is when we install the app, the notification gets pinned on the phone. Okay. If when you try to clear it, it doesn't clear. Like it is pinned there. Okay. Always 24/7. So if there's any emergency, like आजकल kidnapping, rape cases बहुत बढ़ गए, and students mostly जो घर के बाहर रहते हैं, parents are also worried
कोई बच्चा घर से दूर है कैसे होगा. एंड स्टूडेंट्स आर लाइक रात में घूमना है, नाइट आउट करते हैं, पार्टीज करते हैं वो और उनको फिर ये सेफ्टी का ध्यान नहीं रहता ज़्यादा. और वो टाइम ऐसा था इफ सपोज इन केस कुछ किडनैपिंग मतलब कुछ हो जाए नेगेटिव, सो दे डोंट हैव टाइम टू कॉल समवन कि लाइक ब्रो मैं यहाँ पे हूँ आजा, कुछ डिफिकल्टीज हुआ है वगैरह. सो व्हाट आई हैव डन इज द नोटिफिकेशन जो एक बार टैप कर दो, जैसे टैप करें जो आपने कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किया लाइक हॉस्टल के रूममेट्स हो, वार्डन हो, कुछ क्लासमेट्स हो, तो उनको लाइव लोकेशन एसएमएस के थ्रू विद इन अ सेकंड चला जाएगा. नेट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. ग्रेट. जस्ट यू हैव टू टैप द नोटिफिकेशन एंड योर लाइव लोकेशन इज सेट. एक सामने वाले पे कोई है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यू हैव शेयर्ड द लोकेशन एंड समवन इज कमिंग. सो दिस इज अ गुड कांसेप्ट. एंड इवन आई हैव द पेटेंट ग्रांटेड फॉर दैट ऐप. Like it's unique, so that's the second which and it's totally free. That is totally a social work from my side which I am doing. Okay, it is available on Google Play Store. Play Store. Only Play Store because Apple का they have some guidelines rules. हाँ कि notification pin नहीं कर सकते हैं. So if notification pin नहीं कर सकते, there is no logic. So use ही नहीं है फिर उसका. Android में है, so it's available on Play Store. So everyone should go and download that app. Link in the description. So that's the and the third one is Careflight. Now हाँ and how could I start like idea कैसा है मुझे कि ये start करना है. So the thing is during pandemic only I was watching the episodes of Satyam और Jayadr. आमिर खान का शो. Yeah. So वहाँ पे the एक लेडी आई थी, ओल्ड लेडी, जिनके साथ ये रेप इंसिडेंट हुआ था. सो शी वाज एक्सप्लेनिंग दैट इन डिटेल लाइक कैसे हुआ, वो क्या कर सकती थी. तो उस वजह से मैंने सावली का मतलब जो भी आइडिया लाया उसको डेवलप किया, टीम बनाई एंड लॉन्च किया. देन सेकंड वाज केयरफ्लाइट का लाइक मेरे दादी को कोविड हुआ था एंड दैट टाइम उनको एडमिट करना था हॉस्पिटल में. तो एम्बुलेंस का बहुत शॉर्टेज था. लाइक वी यूज्ड टू कॉल 108. देन 108 यूज्ड टू चेक हु आर ड्राइवर्स आर अवेलेबल इन आवर एरिया. उनको फोन करके एक भैया आर यू देयर, नहीं है क्या वो सब. फिर जो अवेलेबल है उनका फोन आता था. फिर मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग था. ऑफ कोर्स ये सिचुएशन उस लायक और कि सबका कॉल. ये इमरजेंसी थी बहुत. या ऑफ कोर्स वो टाइम ऐसा चाहिए कि भाई एम्बुलेंस फोन किया, एम्बुलेंस Just a minute, लाइक बहुत मूवीज में भी सुना है पिज्जा 30 मिनट में आता है, लेकिन एम्बुलेंस की गारंटी नहीं है आज तक भी. इतना डेवलप हुआ है फिर भी. सो व्हाट आई स्टार्टेड इज लाइक ओला उबर जैसा. लाइक ओला उबर रिक्शा स्टैंड पहले भी थे, लेकिन घर बैठे अगर आपको रिक्शा मिल रही है कम कॉस्ट में तो people shifted to they just implemented they just implemented technology same way. एम्बुलेंस अवेलेबल है. आप जो मैं सेम ऐप डेवलप कर रहा हूँ. जब भी आप एम्बुलेंस में आओ ड्राइवर जस्ट और मार्क करना ऐप पे कि आई एम ऑन ड्यूटी. जैसे वो ऑन करें, अगर आप मुझे एम्बुलेंस बुक करनी है मेरा फोन से जो नेटवर्क है मतलब मैप का वो डिटेक्ट करेगा आसपास कितने एम्बुलेंस ड्राइवर हैं. और बुक करने के बाद सबको नोटिफिकेशन जाएगा ड्राइवर्स को. जैसे ही सिलेक्ट किया आपका नंबर, लाइव लोकेशन और आपका नाम सब वो ड्राइवर के पास चला जाएगा और ड्राइवर का आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट. ये फोन करो फिर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट. सो वो केयरफ्लाइट का है. एंड सेकंड इज माय साइड बिजनेस मतलब इवेंट्स का. सो आई डू पार्ट टाइम इवेंट्स आल्सो. लाइक अभी दर्शन होली का इवेंट जस्ट रिसेंटली किया. So it was उसका खर्चा was around total 65 lakhs. But as I have strong network and good communication skill background, so I got good sponsors and good response from the team. And there were like around 10,000 plus people who enjoyed the Holi, and I had conducted that successfully. So event में भी कुछ कोई personal reason है जिसमें personal reason like see I basically I don't like clubbing. Okay. I don't drink, I don't smoke, nothing. Okay. So the only purpose is like I saw that people आजकल की जो जनरेशन है ना उनको क्लबिंग बहुत पसंद है. बहुत like हद से ज़्यादा like they are like dying for like clubbing हो. They don't check the price. लोग चाहे मुंबई हो कॉन्सर्ट, पुणे के लोग मुंबई जाएंगे कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे. They are that die-hard level fans. So I was like let's start. I have good network. मेरा भी प्रमोशन होगा स्टार्टअप्स का एंड इवेंट भी होगा एवरीथिंग. सो आई एंटर्ड दैट फील्ड इवेंट्स. So now the thing is, like you means event or something
एक शार्क टैंक में एक एल्टोर करके कंपनी आई थी, उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था। मतलब एल्टोर कंपनी इज बेस्ड ऑन द हेलमेट्स, ऑटोमेटेड हेलमेट्स हाँ। वो बनाते थे। आप शायद देखे थे शार्क टैंक? आई डोंट नो। ओके, इससे मैं उनका एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। उनके जो फाउंडर है, उनके फ्रेंड के मम्मी का उनको कॉल आता है कि दिस इज मींस उनका एक्सीडेंट हो गया है एंड दिस इज द लाइक। तो एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने एक ऑटोमेटेड हेलमेट मींस वो बना दिया कि अगर कुछ भी डिटेक्ट हो तो ऑटोमेटेड, जैसे आपने बोले, हाँ। सीधा सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स पे मैसेज चला जाएगा, कॉल चला जाएगा। सो वो ऑटोमेटेड मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन लाते हैं, जैसे आपने बोला। इसलिए मैं ये इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं। एवरी बिजनेस लाइक जो भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, दे वर्क ऑन सच प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम दिखे तो दे विल इमीडिएटली ट्राई समथिंग, इवन दो अगर सपोज ओला है, उबर ने भी लॉन्च किया सेम आइडिया बट कुछ डिफरेंट, कम टाइम कम मनी, अच्छी सर्विस देना, सेम लाइक जोमेटो स्विगी, दोनों के आइडिया सेम है, फूड डिलीवरी, बट दोनों के इम्प्लीमेंटेशंस अलग है। तो बेसिक एंटरप्रेन्योर जो भी वर्क करते हैं ना, वो सब रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही इंस्पायर होके करते हैं। लाइक जब जितने भी मैंने सुने रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वही वो सॉल्यूशंस लाते हैं उसके लिए। So there are actually, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। There are many startups, like startups नहीं बोल सकते, there are no, I think unicorns, Swiggy, Zomato, हाँ सेम चीज करते थे। स्विगी, इंस्टामार्ट, अरे फैमिली में थे। हाँ स्विगी, इंस्टामार्ट, Yes. डेंजो, ब्लिंकिट, now there is one new thing, Zepto। ये तीन पहले से थे। Zepto ने 2 मिनट, मतलब 2 मिनट, not like 2 मिनट, बट बहुत जल्दी आके मार्केट को कवर किया as compared to Swiggy, Denso and all. Right. As I said, इसको कोई limitation नहीं है. You have to make sure that अगर if you are launching some product, there will be 1 or 2 or many persons who will copy that product. But the strategy, business strategy, idea implementation, marketing, अभी marketing देखो, Zomato का बहुत अलग level पे marketing चलती है. Same with Swiggy, Blinkit और Zepto का कम चलता है, लेकिन these two are like they are giving tough to everyone. सबकी strategies अलग है, और अगर आपकी strategy अलग है तो आपके आइडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 जन करे या 10 जन करे, आपके सामने कितने भी opponents हो. Like similarly in events, if I am launching an event, suppose on this day, there are 10 to 12 companies will launch the same event, like event on that day in different areas to just split the crowd. बट क्राउड को हम क्या देते हैं, आर्टिस्ट कौन सा बुलाता है, या हाउ आर वी इम्प्लीमेंटिंग, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी कम से कम में ज्यादा दे सकते हैं, क्या यूनिक, राइट। यूनिक थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो आइडिया कॉपीड हो या ना हो, यूनिकनेस बहुत जरूरी है। आपने Zepto यूज किया? आई हैड यूज्ड इट एंड स्विगी, इंस्टामार्ट, डेंजो? हां, आई हैड यूज्ड। आपको वो दोनों स्विगी, इंस्टामार्ट, डेंजो, ब्लिंकिट, ये तीन को एक साइड रखते हैं एंड Zepto को एक साइड रखते हैं। Zepto में ऐसा यूनिक क्या था कि इतना जल्दी कवर कर See, Zepto में unique कुछ नहीं. Actually, the products what are they use are like they are not actually the like उनका एक warehouse है. पहले से products लाके रखते हैं खुद का. Swiggy, Instamart is like वो शॉप से जो भी होटल है वो टाइप होता है, और अगर वो होटल है तो they will go to that hotel, they will pick that item and deliver you. Zepto क्या करता है, आपको फ्रूटी चाहिए, ठीक है, हमारे warehouse में फ्रूटी है, फ्रूटी में तो उसके साथ सिमिलर जूस है, मैंगो जूस, तो दे विल डिलीवर दैट। उनका वेयरहाउस हर एक लोकेशन में एक वेयरहाउस है, तो इसलिए 10 मिनट में वो इजीली अवेलेबल कर देता है। लेकिन जो ब्रांड क्वालिटी जो टाइम है वो नहीं दे पाते, नहीं एक्चुअल प्रोडक्ट दे आर लाइक यू कैन से सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग कर दिया। या and ये सेम चीज के इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, सो उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरा डिफरेंट है, जोमेटो का पूरा अलग है, स्विगी का अलग है। So let me ask you, I think this is not familiar with you, I think, but आपने ये से बहुत यूज किया होगा मींस at a particular time. It's about the decision making. Okay, there are 2 types of decision making. I think one is heart based and one is mind based. So क्या प्रेफरेंस ज्यादा रहता है, क्या किस टाइम पे एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए हैज ए स्टार्टअप फाउंडर इन द फील्ड ऑफ द स्टार्टअप्स? वो पर्सपेक्टिव से आंसर कीजिए। डिसीजन मेकिंग स्टार्टअप फील्ड में या कोई भी फील्ड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रायोरिटी अगर दी जाए, लाइक व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, तो नंबर 1 पे जो आता है डिसीजन मेकिंग। दैट्स द थिंग। सो व्हेनेवर यू मेक डिसीजन, सिर्फ डिसीजन नहीं बनाना है, दोनों साइड से, अगर पॉजिटिव रहा तो क्या कर सकते हैं, नेगेटिव हुआ तो क्या कर सकते हैं,
वो मन की तैयारी रहनी चाहिए। जो दिमाग से सोचो, मन से सोचो, डजंट मैटर। यू हैव टू ऑलवेज हैव अ प्लान बी, या फिर अगर फेल हुआ तो क्या करना है कवर अप करने के लिए, या उसका अल्टरनेटिव क्या है। लाइक पॉजिटिव भी है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं नेगेटिव होता ही है, like, कुछ परसेंट में। सो वो नेगेटिव कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर वो कितना अफेक्ट करता है। लाइक सपोज इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू आर इन्वेस्टेड 10 रुपीज सपोज फॉर एग्जांपल, और आपको पता है मार्केट में इसकी वैल्यू है 7 रुपए, यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड 10, यू आर सेलिंग एट 7, नो यूज। बट आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट 10 डाले हैं, मार्केट में 15 चल रहा है, स्टार्टिंग में सेलिंग एट 12, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर 7 में जा रहा है तो ये इमेजिन करो कि 10 में से अपन क्या मिनिमाइज करके अपन वो प्रोडक्ट की कॉस्ट एटलीस्ट 6 तक ला सकते हैं, सो दैट 1 रुपए का एटलीस्ट प्रॉफिट हो। तो डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपको प्लान बी हमेशा रेडी रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। प्लान बी एकदम मतलब रखना ही है। इफ यू डोंट हैव प्लान बी, डिसीजन को अप्रूव मत करना, प्लान बी कंपलसरी ढूंढ के रखना, उसके बाद ही व्हाटएवर डिसीजन यू आर टेकिंग यू हैव टू गो विद दैट। एंड द सेकंड इज इवन तो फेलियर हुआ तो मतलब वो थिंग्स जो भी फेलियर है ना उसको अडॉप्ट करके, लाइक टॉन्ट देने वाले बहुत होते हैं, फिर बोला था मैंने मत कर, तूने सुना नहीं तो गूगल, तो ये सब छोड़ के भी वो अडॉप्ट करके आगे कैसे बढ़ते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है पूरा। तो डिसीजन कुछ भी लो, यू हैव टू हैव अगेन द मेन थिंग पेशेंस एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ दैट नहीं ये काम करेगा। इवन तो फेल हुआ अभी, अगले में अपन तो बेसिकली सक्सेस हुआ तो क्या करना है आगे, और फेल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बेसिक रेडी रखना है। चाहे वो सक्सेस यू नो दैट ये सक्सेस ही होने वाला है 100%, 100%, फिर भी यू हैव टू हैव प्लान बी रेडी। ओके, रिस्क नहीं लेना वो चीज में, प्लान बी रेडी रखना है। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर जो आपका क्या व्यूज है, जो लोग कहते हैं कि डीमोटिवेट्स यू एक्चुअली कि तू तो नहीं कर पाएगा एंड सो ऑन। So the thing is, what I basically personally do is I literally ignore him. Demotivate करते हैं ना, मतलब जो भी demotivate करते हैं ना, I literally ignore them. The basic thing is I have trust in myself and I know मेरी आइडिया कितनी काम करेगी और मुझे क्या करने के बाद वो चीज जो भी वो बोल रहे हैं। हाँ, मैं कुछ लोगों का सुनता भी हूँ, like someone like अरे ये तो पहले से ही है, like as you said Swiggy Zomato, अभी suppose I am starting the similar thing, लोग बोलेंगे अरे इनका भी सेम है, ये भी कम इसमें देते हैं, तो I work on that कि उनसे यूनिक मैं कैसे करूँ। Firstly, कुछ अच्छे एडिटर्स भी होते हैं और कुछ दे आर लाइक नहीं, कुछ भी कर नहीं होगा, वो मैं उनको टोटली इग्नोर कर देता हूँ, और कुछ कुछ का मैं सुन के मेरे इसमें इम्प्लीमेंट करके और अच्छा बनाता हूँ। तो हेटर चाहिए भी, कुछ लोगों का सुनो, कुछ का इग्नोर करो एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। हेटर्स का पर्सनली लो और बिल्डअप करो, बिल्डअप करो। लाइक कुछ इफ द मैन इज सेइंग दैट ऑलरेडी आइडिया है, वो भी कम, लाइक सपोज डोमिनोज है 30 मिनट में तो वो भी पिज्जा देता है, उनका भी पिज्जा अच्छा है, तो तू क्या अलग करने वाला है? आई विल डू समथिंग यूनिक, कुछ अलग डिश लाऊंगा, और 30 मिनट देने में 25 में ट्राई करूंगा। क्राउड पुलिंग के लिए जितना कर सकूं मैं उसका सुनूंगा, लेकिन सब लाइक तो 20 मिनट में देने ही आएंगे और डोमिनोज ही बहुत अच्छे, इतने साल के मार्केट, आई विल इग्नोर दैट पर्सन, लिटरली इग्नोर। वन यूनिक फैक्टर कैन अफेक्ट द लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आजकल लोगों को चाहिए बस यूनिकनेस। फॉर सिंपल एग्जांपल, वाटर 70% अवेलेबल है पूरे अर्थ पे, फ्री में मिलता है, किसी ने उसको बस पानी बिस्लेरी डाल के 20 रुपए में बस दुकान पे अवेलेबल कर दिया। लोग बिस्लेरी के फाउंडर्स को बोलते थे कि अरे दूध नहीं दे रहा है कोई आगे वाला, पानी क्या देगा। सो लेकिन आज देखो, दूध से ज्यादा पानी आज घर होटल में जाने के बाद भी नहीं, बिस्लेरी का पानी दो बोलते हैं, मतलब जो भी मिनरल वाटर वो दो। सो मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत अफेक्ट करती है, एंड जितना आप लोगों को स्पून फीडिंग आजकल बहुत चाहिए, जितना इजी करके दो, तो आप टेक्नोलॉजी यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, जितना सिंप्लीफाइड दे सकते हो लोगों को, उतना लोग आपके पास आएंगे। सो दैट्स द मेन। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट आर योर सजेशन टू द करंट स्टार्टअप फाउंडर्स लाइक आवर एज ग्रुप, लाइक 18 to 24 age group and beyond that. See, what are your suggestions? The very first suggestion I have given before also, have patience. क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि you have started your startup and एक साल के बाद you have started earning in CRs or in lakhs.
एक्सपेक्टेशन, सपोज इफ यू आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, 1 महीना हो गया तो बिजनेस कर रहा है, दिखा कितना है तेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिजनेस करना है तो मार्केटिंग के लिए उतना 10 रुपए आए तो मुझे 8 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 2 रुपए मेरे सेफ साइड के लिए रखने पड़ते हैं। इन दैट वेज बिजनेस होना तो उसको टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब वो अर्निंग चालू हो जाती है ना तो वो बहुत सही होता है, मतलब अलग लेवल पे होता है वो। हैप्पीनेस भी, आपको फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, एंड द पीपल आर लाइक हमारे बच्चे को भी सीखा कुछ ऐसा। सो हैव पेशेंस, हार्ड वर्क बहुत नेसेसरी, बहुत लाइक डे एंड नाइट वर्क करो, जितने भी यूनिक फैक्टर्स ला सकते हैं। अभी स्विगी जोमेटो है अच्छे लेवल पे, फिर भी दे आर डे बाय डे वर्किंग ऑन देयर मार्केटिंग। डे बाय डे वो कुछ अलग मीम्स बनाएंगे, कुछ अलग, वो अलग अलग कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करेंगे, वो कोलैबोरेशंस करेंगे। दे हैवंट स्टॉप। सक्सेस होने के बाद भी वो लोग मतलब उतने ही मेहनत करते हैं जितना पहले करते थे। तो हार्ड वर्क इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, and the third is discipline. So these 3 factors you should have: Okay. patience, hard work and discipline. So that will definitely reach you to a success path. One or the I other. think that's it. So thank you, Daniel sir, for beginning with our journey story. And for next video, let's catch you on the next video. Till that, like and subscribe to this video. And this is Aryan Gupta signing off for today.